Actually, those reactions are not that much important, but okay, it's important. So one is preparation of phenolphthalein. So that is another some other reaction of phenol. And the first reaction which we are going to see, that is preparation of phenolphthalein. That is, in short, we said HPH, right? So here, now in this preparation, we have to understand this is called phthalic acid. This is called phthalic acid where pH is silent. And that is called phthalic anhydride. So if we are going to remove H2O from phthalic acid, right? So this is going to form phthalic anhydride. Now, the reaction is over here. Reaction is phthalic anhydride is reacting with phenol. So we are, let's say, we are removing water from here. So we are going to remove, let's say, H2O. We are going to remove H2O from here. So that is removal of water, because we are having 2 units of phenol and not 2 units of phenol over here. So that is going to form, okay, so that is going to be phenolphthalein. Okay, so that's it. This is phenolphthalein. Now if you are going to, so this is removal of H2O we are doing here. If you are going to put in basic medium, okay, so if you are going to put in basic medium like OH minus, so it is going to form dianion. This is colorless. This is going to be colorless. And if it is forming dianion, then it is going to be pink color.
This is going to be pink color. So you can write this part. Now next reaction is, let's say this done. ये हो गया भाई, कोई लिख तो नहीं रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है अब आपको सेकंड है let's say Gartermann reaction. So reagent here is HCN plus HCl. So the phenol is reacting so in this part when they are going to react, you know, this is the reagent, they are going to react. So what will form, ये नाइट्रोजन जो है ना वो H plus ले लेगा, which is going to form HC, okay, double bond NH. The positive will form here, so this is electrophile. Now if it is reacting with here, so HCN plus HCl, then it is going to actually, this is the electrophile in this reaction. तो ये क्या होगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा. कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे. Now if you are going to put into water, तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे. तो सो आंसर इज गोइंग टू बी फॉर्माइलेशन, तरह से CHO ग्रुप जुड़ गया. ठीक है, ये लिख लो. Next, third reaction is Friedel-Crafts reaction. So generally
yield of this reaction is very poor or less. Hence, we say phenol does not give Friedel-Crafts reaction. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका यील्ड बहुत कम है. इससे क्यों यील्ड बहुत कम है ना भाई? रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ O है ना, OH, like this is going to OH plus AlCl3. Okay, this is salt. Ring gets deactivated. But अगर मान लो रिएक्शन बतानी ही है तो बताएंगे कैसे? How we are going to say product is going to form? So we will say this is reaction CHCl CH3Cl plus AlCl3, that is going to form ortho and para product. लिख लो ये. आगे आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. लेट्स से फोर्थ. ठीक है, दैट इज गाटरमैन कर लिया, ये कर लिया. ठीक है, क्या बची है रिएक्शन? हाँ, रिएक्शन विद PCl5. ये ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस हैं. तो अगर मान लो फिनॉल के साथ बनता है, फिनॉल PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म, जैसे ROH से Cl निकल जाता है, ऐसा बनेगा POCl3 plus HCl. But again, this is yield is poor. This is phenol further reacts. Or phenol further reacts with POCl3. So phenol reacts further to POCl3. So then it is going to form
C6H5O है ना, दिस इज H की जगह ये आया C6H5, H3PO4 बनता है ना, तो H की जगह क्या आ गया C6H5 होल थ्राइस H3PO4 like this is going to form. है ना, आप ये देखो H3PO4 होता है ना, H की जगह हमने क्या लिख दिया R या AR, तो ये रिंग आ गई। नेक्स्ट है इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, लिख लो। So this is phenol if it is reacting with formaldehyde plus NaOH. This is formaldehyde. तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस प्रोडक्ट, आइदर इट इज गोइंग टू बी, है ना, ऐसा, और इट इज गोइंग टू बी ऐसा। ठीक है, कैसे हो रहा है समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है। So mechanism is this, पहले वही है OH NaOH की प्रेजेंस में H प्लस खो देगा, so it is going to be like this, and this bond is going to rearrange, now this is going to attack on formaldehyde, so this is going to attack here, this bond is going to break, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2O माइनस। and when this bond is going to hydrogen is going to shift here, तो ये H इधर आएगा और H ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो दिस इज हाइड्रोजन एक्सचेंज। पहले लिख लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट, फिर हाइड्रोजन एक्सचेंज लिखेंगे। सो हाइड्रोजन एक्सचेंज, अब ये बन गया आपका CH2OH, तो दिस CH2 इज OH इज आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब क्या होगा आगे, फर्दर पॉलीमराइजेशन और होगा। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और ये H2O निकल जाएगा, ठीक है, ये H2O निकल जाएगा और ये लगातार होता रहेगा, मतलब एक और नया मान लो, यहाँ पे भी H है, ठीक है ना। ये तो हो गया, तो ऐसे ये पॉलीमर बनेगा। और नीचे भी ऐसे देख लेते हैं, अगर मान लो नीचे कोई ऐसा हो, पैरा फॉर्म वाला हो, है ना, पैरा और ऑर्थो दोनों वाला हो, मान लो ऐसे, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज गोइंग टू कंबाइन, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज गोइंग टू कंबाइन। सिमिलरली, है ना, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा है, दैट इज गोइंग टू कंबाइन, यहाँ हाइड्रोजन जो लगा है वो दैट इज गोइंग टू कंबाइन, यहाँ हाइड्रोजन जो लगा हुआ है दैट इज गोइंग टू कंबाइन। तो ऐसे रिएक्शन होगी, तो अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो हम n, बहुत सारे H2O निकल जाएंगे, so n times H2O has been removed। तो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ओके नहीं बनेगा यहाँ पे। So this is n times, so this product is going to be like this, यहाँ CH2 OH, फिर यहाँ CH2, फिर अगेन OH like this, ठीक है, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ OH। आप लोग समझ रहे हो ये बात, ये कैसे आ रहा है, राइट। फिर यहाँ CH2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकेलाइट। देखते हैं किसने क्या बोला है। हाँ, तो भाई जितनी भी ऐसे चेन, मतलब वही उसी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, कि एक से बना दो, दो से बना तीन, ऐसे आगे बढ़ के चेन टाइप बनती गई ऐसे करके, तो लाइक दैट दिस इज बैकेलाइट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग, एक मिनट लिख लो आप। डन, लिख तो नहीं रहा है।
ठीक है, डन हो गया। चलो, तो ये हो गई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो आई थिंक मैंने सारी रिएक्शन बता दी। ठीक है, यही है फिनॉल की थोड़ी और रिएक्शंस जो हम देख सकते थे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये टाइप्स ऑफ, एक बार जैसे सेट हो जाए पॉलीमर्स तो दोबारा वो चेंज नहीं हो सकते, उनका साइज चेंज नहीं हो सकता लाइक दैट। तो एक ही बार मतलब बनाते हैं हम उनको, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, उनको उनका हमने उनको कास्ट किया डाई में और फिर उसके बाद बना दिया जो भी स्विच बनना है जैसे भी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा उसको आप मेल्ट करके और फिर दोबारा आप बना सकते हो, वैसा नहीं। एक ही बार, एक बार जो सॉलिडिफाई हो गए तो परमानेंटली सॉलिडिफाई हो गए। जबकि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक मतलब ऐसा है कि थर्मोसेटिंग मतलब सेट हो गए, थर्मोप्लास्टिक मतलब होते हैं कि रीयूजेबल होते हैं। जैसे टॉयज वगैरह बनते हैं ना, उनकी जो पॉलीथीन होती है उसको अगर आप मेल्ट कर दो फिर से दोबारा यूज कर लो, लाइक दैट। तो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है ईथर। प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन हमने देखी हुई है, तो मैं एक इन जनरल बोल दे रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ROH हो और इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराओ, ये ROH को अगर चाहो तो हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, ये पहली प्रिपरेशन रिएक्शन है। सो दिस इज गोइंग टू बी C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट Al2O3 और यहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखें 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 250 260 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, ईथर। थर्ड रिएक्शन इज Williamson synthesis. विलियमसन सिंथेसिस क्या है? विलियमसन सिंथेसिस में, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, रिएक्शन है RX is reacting with RONA and this is 1 degree or 2 degree. So it is going to form R, let's say ये है R dash, ROR dash. So it is going to be, this is going to be nucleophile, it is going to attack here, X is going to leave. This nucleophile is going to attack like this and X is going to leave. So this is going to be ROR. Pre provided यहाँ पे 1 degree और 2 degree होना चाहिए. With 3 degree RX, elimination reaction takes place. Elimination reaction takes place means क्या बनेगा, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। तो लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना, X plus Y gives, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, X and Y can be, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है X equals to CH3 C CH3 CH3 X
and Y will be CH3ONA. Another option is CH3X plus, and Y is X, and Y is CH3 CH3 CH3ONA. Which one is better? This is B option or A option? Give me answer. So yes, सबने भी बोला, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या होगा, ए में देखो क्या था, यहाँ पे ए में ये 3 डिग्री RX है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, एल्कीन. यहाँ पे क्या मिलेगी, we will be getting alkene elimination. और यहाँ पे ये सही है. ठीक है, तो ये याद रखना. इसी तरह से अनदर एग्जांपल, x plus y again is this. अब आप खुद बताओ x और y क्या होंगे. What can be x, y? What can be x and y? बताओ भाई. Okay, one answer I am getting. Two answers. Okay, Kostov is correct. Zia is wrong. हेलो बेंजाइल पे SN2AR रिएक्शन होगी, है ना, वो डिफिकल्ट होती है. तो क्या होगा, x विल बी, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये भी देख सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी ONA. ठीक है, ये, एंड Y इज गोइंग टू बी CH3X. दिस इज करेक्ट. अगर किसी ने X को ये लिखा हुआ है, then it is going to be wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, राइट? तो ये गलत हो जाएगा. चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आप पूछ जा सकते हैं. which one is better method? नेक्स्ट लिख लो ये सब एग्जाम्पल. ईथर बहुत छोटा है वैसे, ठीक है, ईथर ज्यादा बड़ा नहीं है. आज हम फिनिश कर देंगे. डन. ओके, चलो फिर आगे चलते हैं. तो ये हो गई थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन, ये भी हमने देखी हुई है, SN2 का पार्ट ही है. चलो, फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ ROH with
CH2N2। तो क्या ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ROH है। अगर यहाँ पे CH2N2 होगा, so this is going to attack here, it's going to leave ROH plus CH2 माइनस। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, N2 निकल गया। तो ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन और कार्बन हैज गेन द इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा? H प्लस इधर से इधर चला जाएगा तो क्या बनाएगा? ROCH3। नेक्स्ट, अगर RX की रिएक्शन Ag2O से हो, that is going to form ROR plus Ag2, sorry AgX, ये क्या करेगा? X ले लेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कि इन दोनों के बीच में ट्रैप जाती है। सो दीज आर प्रिपरेशन रिएक्शन। अब आती है केमिकल रिएक्शंस की, प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, लिख लो ये बात। Now, next is chemical properties of ether. तो इसमें दो रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो अगर कहीं पे लिखा है ROR डैश और यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और इट इज गोइंग टू फॉर्म ROH प्लस R-OH, एल्कोहल बन जाएगा, है ना। कैसे हुआ ये रिएक्शन? सबसे पहले इसने H प्लस लिया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बना? RO R-H प्लस, फिर क्या हुआ? एक बॉन्ड टूट गया अलग से, तो क्या बना? R पॉजिटिव प्लस R-OH। फिर क्या हुआ? फिर वाटर की रिएक्शन हुई तो ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये बिल्कुल आसान है। इसमें जैसे भी दो R ग्रुप है, दोनों अल्कोहल बना दो। जो रिएक्शन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, दैट इज रिएक्शन विद HI और HBr, रिएक्शन विद concentrated HI और HBr, ना। Both of these reaction comes into the basic nature of ether. क्योंकि ये बेस की तरह है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे केस है, केस 1 होता ये है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री गोज विद SN2, 3 डिग्री एलाइल बेंजाइल गोज विद SN1। सो अगर मान लो केस 1 है ना, इफ SN2 रिएक्शन, है ना, तो इसको केस 1 की तरह नहीं समझा जाए ऐसे, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म वाली बात लिख दी। अब लिखते हैं केस 1।
case 1. If ROH is leaving when nucleophile file is approaching, that is SN2 reaction. That means क्या है कि जैसे अगर ये एग्जांपल है CH3O CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन हो रही है HI से, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ये H+ लेके ये बनाएगा. Now both of these are not very good कार्बोकैटायन. यहाँ पे चाहे ये बॉन्ड टूटे चाहे ये बॉन्ड टूटे, ये दोनों ही अच्छे कार्बोकैटायन नहीं है. तो क्या होगा, I- अटैक करेगा तब ये निकलेगा. लेकिन अब I- कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे या मोर हिंडर्ड कार्बन पे. तो SN2 रिएक्शन है तो ये लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा. ये कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा. तो ये इधर अटैक करेगा और जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होके निकल जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म, है ना, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर CH3I प्लस C2H5OH. मान लो सिमिलरली अगर मैं लिख लो, ठीक है, चले आगे. ये हम वैसे करा चुके हैं एक बार, SN2 SN1 में हमने ये बात बताई है, लेकिन अब टाइम हो गया इसलिए थोड़ा और बता दें. नेक्स्ट केस 2. ठीक है, अब अगर मान लो इसमें एक जगह 1 डिग्री R and 3 डिग्री R बोथ आर प्रेजेंट, है ना. अब ये अगर 1 डिग्री 3 डिग्री है तो 1 डिग्री R के कारण SN2 हो सकता है और 3 डिग्री R के कारण SN1 हो सकता है. लेकिन अगर अब यहाँ पे आता है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे A है. If polar aprotic solvent are present, ठीक है, तो SN2 फेवर्स SN1. तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे CH3 over here, this is O C CH3 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 ऐसा दे रखा है, और इसमें यहाँ पे HI के साथ साथ दे रखा है मान लो DMSO. तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी. पहले H+ जाएगा और ये बनाएगा CH3I, सॉरी कंट्रोल Z, ओके, H+. अब आप देखोगे I- कहाँ अटैक करेगा, DMSO है तो SN2 की तरह रिएक्शन होगी, तो I- इज गोइंग टू रिएक्ट एट लेस हिंडर्ड कार्बन. ये गया और इसने यहाँ अटैक किया, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो बनेगा CH3I प्लस CH3C CH3 CH3OH.
बट ये बहुत कम जगह दे रखा होता है। अगर डीएमएस सुना दिया हो तो ज्यादा वो अपने आप से अज्यूम नहीं करना है। बी, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 is greater than SN2। तो अगर मान लो इसी में CH3O, CH3 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 की HI से रिएक्शन होती है और कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज वाटर, है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स वाटर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3OH plus CH3 CH3 CH3। अब ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा, बनेगा CH3OH plus CH3 प्लस और फिर I माइनस अटैक करेगा, बनेगा CH3OH प्लस CH3I। तो यहाँ देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, यहाँ पे छोटा वाला अल्कोहल बन रहा है और यहाँ क्या बना था, बड़ा अल्कोहल बना था, है ना। यहाँ बड़ा वाला आयोडाइड बन रहा है, यहाँ छोटा वाला आयोडाइड बन रहा है। तो ये मैकेनिज्म इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो यू शुड बी केयरफुल। देख लेना आप कहाँ कार्बोकेटाइन अच्छा बन रहा है, जहाँ कार्बोकेटाइन अच्छा बनेगा वहाँ SN1 बनेगा। अब 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको ये एज ए एग्जाम्पल, देख लो इसको एक मिनट पहले। पोलर प्रोटिक मतलब जैसे वाटर है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं, SN1 को। पोलर एप्रोटिक किसको फेवर करते हैं, SN2 को। बस समझ में आया ये बात मेघा भाई। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा होगा तो वहां पे दोनों पॉसिबल थी, SN1 और SN2। अब ये देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट करेगी, तो वहां सॉल्वेंट इफेक्ट आ गया। अच्छा ठीक है, फिर से देखते हैं क्या कह रहा हूँ। देखो भाई ऐसा है, इस ईथर ने H+ ले लिया, यहां तक बात समझ में आई। ये दोनों जगह स्टेप सेम है, हाँ ना। H+ लिया, यस। अब यहाँ 2 चॉइस हैं कि पहले या तो I- अटैक करे या पहले ये बॉन्ड टूट जाए। तो अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, दैट इज फॉर SN2 रिएक्शन, DMSO, एसीटोन, DMF ऐसे हैं, ऐसे सॉल्वेंट हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि भाई ऐसे वाले केस में SN2 होगी और I- इज गोइंग टू अटैक ऑन CH3 और उसके बाद बॉन्ड टूटेगा। तो अगर I CH3 से जुड़ गया तो बाकी ये OH बड़े वाले ग्रुप से जाएगा, ठीक है। अब ये वहीं पे सेम हम यहाँ पे पहुंच गए। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है H2। तो क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो दिस इज SN1 रिएक्शन यहाँ पे। और SN1 में कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर I- अटैक करेगा। आया समझ में, देन से यस, नहीं आया से तो सेंड नो। ओके, तो अब यहाँ 2 बस आपको ये देखना है कार्बोकेटाइन स्टेबल का पहला जो पहचान है वो है कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा। जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वहां पे SN1। तो जैसे अगर मैं मान लो ये दो, जैसे एक एग्जांपल है,
और यहाँ इसकी HI से रिएक्शन हो रही है। और दूसरा एग्जांपल दिस, इसकी HI से रिएक्शन हो रही है। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, दो प्रोडक्ट आएंगे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई। बताओ भाई, दो एग्जांपल है ये।
चलो लेट्स सी। नहीं, जब कोई नहीं दे रखा हो ना तो वाटर है। इफ इफ दे हैव नॉट गिवन देन इट इज वाटर। ठीक है, कौन सा होगा तो आप ऐसे देख सकते हो, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो वाटर। एनीवे चलो मैं यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे SN1 होगी। क्या होगी? SN1। तो अगर मान लो शुरुआत में H+ लगेगा तो पहले ये होगा, फिर क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ देना है, क्योंकि ये SN1 है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा तो ठीक है। तो बन गया ये हमारा CH2+, और ये बन गया CH3OH। और फिर क्या होगा, I- का अटैक होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट CH2I। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे HI है ना, ये यहाँ पे हो रहा है, तो अगर यहाँ पे फिर से इसमें SN2 लगना है, तो अगर हम H+ डालेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा, अब आपको पता है यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन अच्छा बनता नहीं है, और यहाँ पे अटैक भी नहीं होता है, एस मतलब ये तो AR-SN रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, I- शुड अटैक वेयर, हियर। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा फिर। करेक्ट, तो ये आ गया आंसर, OH CH3I। इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो? हाँ ना? वैसे तो काफी लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, ठीक है। सेकेंड वन में क्या है, देखो फिर से, यहाँ पे ना तो ये CH3+ कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ना ये बेंजीन पे पॉजिटिव स्टेबल है। बेंजीन के बाद CH2 होता है ना, तो स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल। बट अगर फिनाइल बनता है तो वो स्टेबल नहीं है, तो SN1 तो आउट हो गया। अब ये I- यहाँ पे अटैक करेगा तो ये रिएक्शन होगी। अब इसमें याद रखना है नोट, है ना, इसमें एक और बात याद रखनी है, नोट याद रखना है, नोट इसमें याद ये रखना है कि अगर एक्सिस में है HI, है ना, if HI is given in excess, है ना, ROH will form RI। देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे ये लिखा होता हमारा CH3O CH3 CH3 और यहाँ पे लिखा है एक्सिस HI, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अल्कोहल बने। ठीक है, अगर मान लो ये एक्सिस HI है और ये वाटर है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है DMSO, दैट मीन्स दिस इज वाटर, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो पहले आंसर बनेगा CH3OH प्लस CH3 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 CH3I। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पहले बनेगा, फिर HI से रिएक्शन होगी और दोबारा, तो ये OH किसमें बन जाएगा, CH3I प्लस CH3, तो दोनों R जो है ना वो RI में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अब ये क्यों बता रहा हूं, है ना, बट इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। तो मतलब जनरल, पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, तो जनरल रिएक्शन क्या है, तो हेंस जनरल रिएक्शन ये है कि अगर कहीं ROR' है और ये एक्सिस HI है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या बनेगा, RI प्लस R' I प्लस H2। अब इसमें एक्सेस क्या है,
एक्सेप्शन क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है कि अगर मान लो हमारा फिनॉल वाला यही वाला एग्जांपल है और इसमें एक्सेस एच आई दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस। क्योंकि इसके आगे एच आई से नो रिएक्शन, फिनॉल की एच आई से कोई रिएक्शन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिमेन फिनॉल एंड सी एच थ्री आई। और कहीं पे होता, जैसे और कहीं मतलब ये वाला होता, अगर ये वाला भी चलेगा, है ना, सी एच टू ओ सी एच थ्री, इसकी अगर एक्सेस एच आई से रिएक्शन होगी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आयोडीन लग जाएगा, यहाँ आयोडीन लग जाएगा, बट ये एक्सेप्शन है, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने एक्सेप्शन में लिखा है, ये याद रखना, क्योंकि फिनॉल की आगे एच आई से रिएक्शन नहीं होगी। तो दीज आर द लेट्स से पॉइंट्स यू कैन राइट। देख लो, काफी बड़ा हो गया ये ना। तो ये हो गई रिएक्शंस, बस एक दो रिएक्शन और रह गई है, ईथर आपका गंदा है। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट, दैट इज अ टेस्ट। ठीक है, रिएक्शन विद peroxide, पहले एक्सेप्शन भी लिख लो।
चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स से इसमें दैट इज रिएक्शन विद ऑक्साइड। Reaction with oxygen to form peroxide. Sorry, not peroxide. Reaction with oxygen to form reaction with oxygen. So if we are having ROR, एक example लिख लेते हैं हम, C2H5O, C2H5, and that is reacting with O2 and oxidation, slow oxidation. It is going to form CH2H5O, CH2, CH3, and this is peroxide. This is explosive, unstable. तो ईथर का अगर मान लो, ईथर अगर एयर की प्रेजेंस में पड़ा रहे है ना, ईथर अगर एयर की प्रेजेंस में पड़ा रहे है ना, तो फिर वो ये ऐसे पेरोक्साइड अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव ये क्या है बना लेगा। और कैसे चेक होता है? चेकिंग ऑफ प्योरिटी। तो इसमें रिएक्शन कराते हैं, Fe2+ को डालते हैं, ठीक है, चेकिंग ऑफ प्योरिटी, और यू कैन से टेस्ट फॉर पेरोक्साइड। सो दैट इज हम इसमें FeSO4 डालते हैं। So this Fe2+ in presence of peroxide is going to oxidize to Fe3+, and then we are going to add KSCN. Then it is going to form FeSCN whole thrice. तो अगर रेड कलर आ गया है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो चुका है। So checking for purity or test for peroxide with the help of this, कि Fe2+ is converting with the help of peroxide is oxidizing to Fe3+, और फिर उसमें KCN डालेंगे तो ये अगर HCN होल थ्राइस रेड कलर आ गया तो ये आपका पेरोक्साइड है वहां पर, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड है तो इसकी रिएक्शन हो रही है FeSO4 से, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है KSCN से, एंड देन वी आर गेटिंग रेड कलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब जो है वो है रिएक्शन विद PCl5। ROR की अगर रिएक्शन PCl5 से होगी तो क्या बनाएगा? RCl। बस हो गया, खत्म, ईथर, एंड। ठीक है, तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब आपको क्या करना है ना, ये तो हमने नोट्स लिख लिए खूब सारे, मैं ये भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी हो गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको बोलूंगा, आपको सॉल्व करने, इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी होम असाइनमेंट 1, 2, 3 कितने लोगों ने कर लिए? नहीं किए तो अभी करो,
ठीक है, पहले आप करो होम असाइनमेंट 1। मैंने कल आपको भेजा भी था, क्या कहते हैं, मॉड्यूल। तो अगर मॉड्यूल नहीं है तो आप उसको ओपन कर लो, मॉड्यूल को। ठीक है, मैं भी इधर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि डन, ये खत्म हो गया मतलब यहाँ पे। अभी हमारे पास काफी टाइम है, अगर हम ब्रेक भी देंगे तो भी 1 घंटा है, कम से कम 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही है, तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइम में। सही है, क्या बोलते हो? ठीक है ये बात? हाँ ना? ठीक है, चलो। तो बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ मॉड्यूल, मैं अपने यहाँ पे खोल रहा हूँ और आप सॉल्व करते जाओ। तो ये है आपका, दिख रहा है ये सबको? इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने शायद किए हुए हैं, सॉल्व करते जाओ। होम असाइनमेंट 1 से PCl5 रिएक्शन ना, एक। ठीक है, तो अब ये आप एक्सरसाइज करो, उसको मैं डिस्कस करूंगा। आपके सामने ही है, आपके पास भी है। ठीक है, मैंने ये भेजा हुआ है मॉड्यूल, आप इसको करते जाओ, मैं डिस्कस करूंगा। अभी 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हो जाएंगे आई थिंक। 10 थोड़े कम है क्या, ज़्यादा है? आप अपने नोट्स देख सकते हो, है ना, उनका रेफरेंस ले सकते हो। तो ट्राई करो 15 क्वेश्चंस का, है ना। आई विल आस्क आफ्टर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। चलो, फिर मैं डिस्कशन कराऊंगा। सॉल्व फॉर 20 मिनट्स। सो लेट्स से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में 3 and 4 आए हैं, 3 and 4। लेट्स सी, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस 3 4 5। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओके ओके, फिफ्थ तक अभी कर रहे हैं पहले, ठीक है। 3 4 5 कर रहे हैं, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो आपको ये सब स्क्रीन दिख रही है ना, राइट? तो एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। यस, दिस इज। यहाँ पे देखो, ये CH3 MgBr की रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है? दिस CH3 माइनस इज गोइंग टू टेक हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब बनेगा क्या, CH4 प्लस, और ये बनेगा एनायन, तो C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr। अब यहाँ पे क्या है, HCHO से रिएक्शन है, बेंजी, इसकी तो एल्केन की तो होगी नहीं,
किसकी होगी? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। तो ये एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ना। पहले CH3MgBr से ये एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन गया? R, यहाँ पे R बस चेंज होगी। बस ये इधर से इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH। सो दैट इज योर आंसर। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन्होंने B2H6 दिया है। B2H6 एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, तो बस ये हुआ आपका CH2OH, तो ये B। यहाँ क्या दिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस PHBrMg, इसका मतलब क्या है? PHMgBr, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? इससे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-, इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये किस पे अटैक करेगा? ये PH- यहाँ से जो आ रहा है, दैट इज गोइंग टू अटैक एट लेस हिंडर्ड साइड, तो ये इधर से खुल गया। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, कार्बन इज गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड। एक फॉर्म नया बॉन्ड बना रहा है, नया बॉन्ड बनाएगा तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक करेगा। सो दिस इज CH3CHOH CH2PH, ठीक है। NH4Cl H2O का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं उसका या देना है ना। O- बनेगा, O- फिर हाइड्रोजन ले लेगा। NH4Cl और H2O, ये सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है ना। तो एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने दिया है कि एसिडिफिकेशन इससे हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब बताओ 6 से 10, 6 से 10 के बीच में कोई आंसर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो? क्वेश्चन अभी तक जो हमने 3 4 5 बताए हैं, उनमें किसी का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो? कोई नहीं ऐसा? वेरी गुड, ठीक है। Now in this case we are having 6 and 8 क्वेश्चन, 6 to 10 के बीच में देखते हैं। तो पहले क्या है? ये कंपाउंड में बी प्रिपेयर्ड बाई, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। मैं 6 और 8 बता रहा हूँ, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है 10 तक तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। 6 8 10, चलो 6 8 10 बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल और यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी इधर भी है ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखते हैं पहले CH3CO CH2 CH2OH CH3MgI। तो अगर अल्कोहल पहले दे रखा है ना, तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका H ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इधर अटैक नहीं होगा CH3 का CO बॉन्ड पे, ये इसका H ले जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा CH4। सिमिलरली इन दिस पार्ट वी आर हैविंग OH, तो इसका H यहाँ पे भी आएगा CH4। सो दीज टू ऑप्शंस आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला ये 1 मोल है, 1 मोल ये एस्टर है, साइक्लिक एस्टर। तो 1 मोल से तो प्रोडक्ट बनता नहीं, 1 मोल से कीटोन बनेगा। इन्होंने अल्कोहल पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये अटैक यहाँ करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लिख तो बनेगा क्या? बनेगा ये, जैसे ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये CH3 इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट से CH3 जुड़ गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, राइट। ये फर्स्ट आ गया, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, है ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर यहाँ O-, एनीवे OH बन जाएगा ये, क्योंकि ये H+ दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ आंसर बना ये ओवर ये। बट अगर मान लो इसमें एक्सेस होता, है ना, जब ये बनता फिर CH3 अटैक करता, अब ये CH3 किस पे, CH3MgI किस पे अटैक करता? So this CH3- would have attacked at ketone, तो इसलिए आंसर बी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 6। दिक्कत समझ में आया? 6 का आंसर। श्रेया
आगे समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मान लो एट्थ में क्या है, एन एल्केन ए ऑन रिएक्शन विद BD3, ये तो मैंने क्लास में कराया है क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में कराया है। BD3 THF followed by H2O2 OH minus ion gives this BD3 THF H2O2 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये क्या है आपका, ये इन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको नहीं पता एल्कीन क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, C CH3C CD2D D CH2OH। तो ये BD3 THF का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक ड्यूटेरियम यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जो ये एल्कीन यहाँ पे होगी वो होगी C C C C C डबल बॉन्ड CH2, और इससे एक ड्यूटेरियम ऑलरेडी यहाँ पे होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसकी H2SO4 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, है ना, सॉरी D2SO4 से, H2SO4 की जगह D2SO4, क्या होगा, D प्लस पहले अटैक करेगा, यहाँ लग जाएगा CH2D, पॉजिटिव आएगा, फिर माइग्रेशन होगा, तो बस दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा यहाँ पे, वी आर गोइंग टू हैव OH, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली OH लिख दे रहा हूँ। आंसर देख लो आप, Me2COH CdCH3CH2D, दिस इज योर आंसर। 10th क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये क्या है, एसिटिलीन में एडिशन ऑफ वाटर, HgSO4 कैटलिस्ट है, H2SO4 की रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, CH3CHO, है ना, ऐसे बनेगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पे OH जुड़ेगा, और ये क्या है, इनॉल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्डिहाइड में ना। इसकी अगर CH3 MgBr से रिएक्शन होगी, तो एल्डिहाइड की अगर CH3 MgBr से होगी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बस CH3CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे आंसर। चलो भाई बताओ 11 से 15 डाउट, किसी को किसी में डाउट, किसी क्वेश्चन में? ट्वेल्व 14, चलो ये द एसिड डेरिवेटिव विच डज नॉट गिव एल्कोहल ऑन रिडक्शन, amide forms RCONH2 forms RCH2NH2, है ना, चाहे LiLH4 से रिएक्शन करा लो, चाहे आप इसकी रिएक्शन H2Ni से करा लो, इट इज गोइंग टू फॉर्म अमाइड। 12 14, CH3MgBr एक्सेस में है तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये एस्टर है, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये दो बार जोड़ दो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 लेट्स से 2 3 4 4 कार्बन है ये, तो ऐसे आप 4 कार्बन मतलब 1 2 3, यहाँ पे OH, और बाकी ये दो ग्रुप, दो बार CH3 आएगा, तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का देख लो आप आंसर। ये तो वैसे भी नहीं होगा, COOH एस्टर, ये होगा नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल यही है, बस एक ही आंसर हो गया। 12 14 15 तक और कोई डाउट? हो गया, तो चलो अब ले लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे बोलेंगे कि बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अभी आप आओ 7:10 तक आओ, ठीक है, फिर लेंगे एक ब्रेक, फिर आपसे, फिर आपको फिर देंगे ऐसे टाइम, कितने क्वेश्चन रह गए हैं इसके, 25 है, फिर देंगे आपको 15 मिनट, फिर सॉल्व कराएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन इसके कराएंगे, ठीक है, देखते हैं।
Okay, so now we will try to solve 16 to 25. ठीक है, 15 minute है, you are having 15 minutes, solve it. चलो, हो गया, हो गए questions. Any doubt? बताओ भाई, चलो डिस्कस करें या फिर अभी कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 18, चलो भाई, let's see question number 18. Question number 20, 18, 20, okay. ठीक है, पहला क्या है? Action of HNO2 on CH3NH2 gives the following major product. तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 18. ये आपका प्राइमरी अमाइन है, तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, बस आंसर. CH3NH2 की रिएक्शन होगी पहले HNO2 से, तो यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3N2 प्लस, ये निकलेगा तो CH3 प्लस, and then it is going to react with water, then it is going to form CH3OH. ठीक है, एक मिनट, इसकी आंसर की दे रखी है क्या? इधर होगी 5th में. नहीं, ऐसा नहीं है, इधर ही होगी. 62 पेज पे है, 62. कौन सा पेज नंबर है ये? 62 पे कहाँ है? (82) ओके, ओके, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया. ओके, 82. यहाँ पे कहाँ है ये? 83 है ना? ठीक है, ठीक है. तो 18 का आंसर क्या है? ए. ओके, ओके. CH3 मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं CH3 कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, तो लेट मी मतलब क्रॉस वेरीफाई. ठीक है, तो ये बन गया. एनीवे 20, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ये है प्रोडक्ट आपका, ठीक है, पहले, और ये कह रहे हैं कि इसका की रिएक्शन हुई तो पहले यहाँ OH लगा, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हुआ, तो ये B2H6 होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे हुआ लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, है ना? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट तो बना बट रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी थर्ड, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड. B2H6 मतलब ये HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, एंड द C इज यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है तो एसिड कैटालाइज, सो दिस इज फर्स्ट. अब देख लो आप, A क्या होगा? A होगा आपका सेकंड. A पूछा है, A सेकंड, A सेकंड हो सकता है. B थर्ड, B थर्ड है. C फर्स्ट, तो दिस इज योर आंसर. बताओ भाई,
20 के बाद 25 तक। कि अभी कर रहे हो 25 तो और कोई डाउट या फिर आप कर रहे हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो डाउट, ओके। चलो फिर ये 25। हाँ, एक मिनट, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है? अब आपको करना है होम असाइनमेंट। चलो भाई, होम असाइनमेंट 2 के 15 क्वेश्चंस करो। आपको 20 मिनट दे रहा हूँ मैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूंगा और फिर छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ट्राई टू सॉल्व। तो पहले है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस RAMGX गिव्स 3 मोल्स ऑफ एल्केन। इसका मतलब क्या है? इस पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो, 1 2 3, ये हो गया आंसर आपका। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, फिर किसी ने बोला था 5। 5 क्या है? ये पिनाकोल, पिनाकोल है, मैंने बताया क्लास में। इसमें क्या होगा? व्हाट विल हैपन? पहले कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन में बनेगा, फिर क्या होगा? इस वाले कार्बन से माइग्रेशन होगा, तो ये माइग्रेट होकर इधर जाएगा, इसको इधर, इस वाले को माइग्रेट कर लेते, ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। बस, फिर इससे ये आंसर आ जाएगा बी। फिफ्थ के बाद 8, 6 है ना, किसी 6 भी पूछा है। 3 6 5 8, ठीक है, 3 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन इजीली डिहाइड्रेटेड, मतलब जिसमें आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, तो बनाओ यहाँ कार्बोकेटाइन। ये तो स्टेबल नहीं है, नहीं। ये ओके ओके है, ठीक है। ये एलाइलिक है, अच्छा है। और ये और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और ज्यादा रेजोनेंस। 3 6 8 में क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिक्विड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। प्लेजेंट ऑर्डर विद द बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री, ठीक है। ऑन बॉइलिंग ए विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब डिहाइड्रेशन। और कलरलेस गैस का मतलब क्या है? एल्कीन प्रोड्यूस्ड विच डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर एंड अल्कलाइन KMnO4। तो इसका मतलब क्या है? ये इस बात को पक्का कर रहा है कि अल्कलाइन KMnO4 तो ये एल्कीन है। 1 मोल ऑफ गैस ऑल्सो टेक्स 1 मोल ऑफ H2। तो बस हो गया यहाँ, ठीक है। इन्होंने यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, उससे देख लो आप। एल्कोहल एक ही दे रखा है, बस ये हो गया आंसर। फिर टेंथ में क्या दे रखा है? H प्लस हीट, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया CH3 C CH3 CH3 CH पॉजिटिव। नहीं, इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, है ना, हाइड्रोजन, नॉट CH3। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा पहले, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये CH3 प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 CH3। अब देख लो, इसमें आपको यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, एक हाइड्रोजन निकालना है, इधर से ही निकलेगा, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा बस। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। अगर मान लो फिर से एक मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, तो कितने हो जाएंगे? CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया,
C, CH3, CH3, CH2। हाँ, लेकिन इधर बनेगा ये 6 के आसपास होगा, लेकिन इसके बाद फिर हाइड्रोजन नहीं है, तो ली सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगी, तो ये नहीं बनेगा। हाँ, यहीं से होगा, इस पे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो बस। अब इसमें कौन सी एल्कीन बननी चाहिए? इसमें शायद आंसर करेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है? आंसर करेक्शन, क्योंकि ये आपकी एल्कीन बनी है ना, तो एक पे ये कार्बन है ऐसे 3, और एक पे ये CH3 है, डबल बॉन्ड CH3H ऐसा है दे रखा है, या फिर उसका उल्टा दे रखा है ये वाला, राइट। तो ये CH3 जो है ये तो रिपल्शन देगा, तो ये होना चाहिए आंसर। आई थिंक मुझे याद है ये वाला आंसर ये दे रखा है, ये C हो जाएगा। हाँ, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे कोई वो तो है नहीं, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? रिपल्शन के हिसाब से आएगी। ठीक है, तो ये और ये दूर होंगे तो अच्छा होगा। 10th और कोई डाउट? Okay, 11 to 20, 11 to 20, 12, 13, 19, 12, 13, 19 और कोई डाउट इसके अलावा? चलो तो चलते हैं 12 ने देखो ये दे रखा है CH3O माइनस इज गोइंग टू लेट्स से अटैक ओवर हियर, ये बनेगा। इनमें बताओ स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है इन दोनों में? ये स्ट्रॉन्गर बेस है C2H5O माइनस, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस, करेक्ट ना? RO माइनस, तो R का प्लस इफेक्ट लग रहा है, जिसपे जितना प्लस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन कम फेवरेबल होगी, तो के इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी लेस देन 1। देख लो आंसर। SOCl2 क्या होगा यहाँ पे? केवल SOCl2 दे रखा है, ये कायरल सेंटर है। कैसे कायरल सेंटर है? CH3H C2H5OH। केवल SOCl2 दे रखा है, तो रिटेंशन होगा SNI, तो क्या हो जाएगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। 12, 13 और एक और क्वेश्चन था कोई 19, 20 भी है, 16 एंड 20, ठीक है। 16 क्या है? A compound X with molecular formula C3H8O can be oxidized to Y with a molecular formula C3H6O2, X is most likely। तो देख लो यहाँ पे C3H8O और ये O2 बन रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में O2 आता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू, सर 13 में ऑप्शन डी इज गिवन। ऑप्शन डी क्या है देखें 13 में? इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसमिंग मिक्सचर। नहीं ये बेटा ये सही है, तो इसमें थोड़े आंसर की गलत है यहाँ पे, है ना। ये इसमें SNI होगा ना, कायरल सेंटर है, तो रिटेंशन। अगर पिरिडीन दे रखा होता तो इन्वर्जन होता, ठीक है। अब देखो ये आपका 2 ऑक्सीजन लिखे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू, प्राइमरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 16 हो गया। उसके बाद है 19, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स दे रखा है इसमें, देख लो कार्बोकेटाइन बना के, पहला इमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये भी 3 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 3 डिग्री नहीं है, सॉरी 2 डिग्री, ये भी तो 2 डिग्री है ना, 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये 3 डिग्री है, तो सबसे पहले तो यही होगा 4,
और कहाँ पे 4, और सबसे लास्ट में 1 डिग्री के कारण 1 होगा तो 1। अच्छा, ए और सी में आंसर है। तो देख लेते हैं भाई 2 डिग्री में यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 और 1 4। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 एंड 2 5, तो ये ज्यादा हो जाएगा 4 2 3 3 1 19 20। I2NaOH, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे इन दिस केस, है ना, इन दिस केस दिस OHCH3 इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये COOH बनेगा यहाँ पे। बी आंसर, बस आंसर विदाउट कहीं पे किसी में भी आंसर चेक कर लो, सबके आंसर सही है। आंसर की में कोई गलती तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो बस वेरी गुड, आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं आए वो देख लो कि क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। 20 ऑप्शन ए इज गिवन, देख लेते हैं भाई ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है। हाँ यार सॉरी, यही होगा आंसर, करेक्ट। बनेगा ये, देखो बनेगा, लेकिन इन्होंने हीट भी दे रखा है डेल्टा। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ दे रखा है डेल्टा, एक बार फिर से यहाँ पे ये बन जाएगा बी यहाँ तक। इसके बाद जब जब हीट कराएंगे तो फिर हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, इसके पहले कार्बेनाइन बना के देखना है। ये कार्बेनाइन बीटा कीटो एसिड है ये, तो क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगा, इसलिए आंसर ये। ठीक है, ये डेल्टा ध्यान नहीं दिया हमने, H+ यहाँ तक देखा, ये डेल्टा दे रखा है। फिर से क्या होगा यहाँ पे, आपको पता होगा डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम कार्बेनाइन बनाते हैं इससे पहले वाले कार्बन पे, अगर वो स्टेबल होता है तो CO2 निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े और कर लो। ठीक है, इस वाले को, ये आपका सिलेबस हो गया इसके लिए, अगस्त के लिए। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे और इसके आप होम असाइनमेंट 4 तक पूरे कर लो। ये तो मैंने क्लास में कराए हैं होम असाइनमेंट, और जो भी है कम से कम एक्सरसाइज के होम असाइनमेंट तो कर लो। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 1 पूछ लो, जिया कर पाओगे? ठीक है, तो ये होम असाइनमेंट करो एंड मैं पूछूंगा, और मैं आपका वो भी पूछूंगा फिजिकल का इधर ही, आपने क्या होमवर्क किया क्या नहीं किया, क्योंकि फिजिकल में हम थोड़ा सा पीछे हैं, ऑर्गेनिक में ओके हैं। तो यहाँ तक देखो, फिजिकल में क्या आएगा आपके सिलेबस में, फिजिकल में आएगा आपका, एक तो लिक्विड खत्म हो गया लगभग अप्रोक्सीमेटली, हम जो लिक्विड करा रहे हैं। सॉलिड स्टेट आएगा एक चैप्टर वो है, और एस ब्लॉक है सेकेंड, मतलब 2 चैप्टर, और सरफेस केमिस्ट्री हमने खत्म कर दिया है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर रह गया, तो आधा पार्ट वहां पे है, तो वहां थोड़ा सा टाइट है, लेकिन यहाँ ओके ओके हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा रहता है, क्या सिलेबस रहता है, वो तो 1 महीने पहले ही आएगा। ठीक है, चलो इस बार अच्छे से तैयारी करनी है, और इस बार सबको कम से कम जिन लोगों के भी 50 60 20 30 ऐसे नंबर आए हैं, इन सबके 120 तक से ऊपर आने चाहिए, है ना, 120 से ऊपर, तब तो अपनी कोई चांस है। 40% मार्क्स आएंगे तब तो कुछ चांस है कि कुछ मिलेगा, ना फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, के लिए मेहनत करनी है, कोई दिक्कत है तो पूछना है। ठीक है, चलो टेक केयर।